Good afternoon, students. Uh, uh, Before we start for the today's session, I would like to ask: is there anything that you want me to discuss from the last two sessions? Anything that was not clear? Anything that you had a query about? I hope not. Okay. Uh, मैम वर्कबुक के बारे में आप बता रहे थे उस दिन मेरा कनेक्शन कहीं नहीं था Assignments, right? The असाइनमेंट्स practical workbook. Haan, या I'll brief about. So for today's session, we essentially are going to talk about the practical part of it. So the assignments, I will also take you through the practical workbook. What are the things that have to be covered? So we will start with the pattern making part. So there, if you look at your practical workbook, there are two parts. First is for the pattern making part, and second is the construction part. So we will start with the pattern making part, and before I take you through the workbook, uh, in your practical workbook, you will see that there is a list of standard measurements that is already provided to you of size 12. However, as a part of your first work that I asked you to do in the first day was to make a measurement chart of a friend of yours. So essentially, what you're making for the first assignment is wherein you are preparing a complete measurement chart. Now, the patterns that you would be making can be from the measurements of your friend, or you can pick up the measurements that is there in your practical workbook, which is provided for size 12. Either way is fine. Now, before we get into the practical workbook, there is something that is important to understand is that pattern making. When we talk about pattern making as a technique, so there is flat pattern making, drafting. There's a number of ways, a number of methods of doing it. So what I thought of doing today is because essentially, if you want to work with a friend's measurement, or let's say if tomorrow you start your own boutique or own shop, you might want to know how to make patterns for any sizes, not just size 12 but for any size. So let me just give you one demonstration of the basic pattern set of the bodice, skirt, and sleeve. And so what we are going to do here is I'm going to show you one method. However, there is also another method in the practical workbook which I'm going to explain after the demonstration that I gave. Is that okay? So we are going to discuss two methods of pattern making. Is that okay? Yes, ma'am. यस मैम Okay, so let me just give me 2 minutes. I'll connect with another device so that I can show you a mobile device so that I can show you the demonstration. Yeah, just stay online for 2 minutes. Hello, I hope I am audible. यस Yes, मैम ma'am. Just hold on for a bit.
RC, can you please pin my video for everybody? Yeah. Is the worksheet visible to everybody? No, ma'am. The worksheet is not visible to everybody. RC, can you please pin my video, or the rest of you, is the video not visible? Students, can you please confirm? It's visible to me, ma'am. Yes, Same It's here, visible. ma'am. It's visible, ma'am. it's visible, right? Yes, ma'am. Okay. So let me start with the demonstration. Okay, so what we are going to do is we can simply start by you can see the worksheet that I have taken. It's a smaller A4 sheet. So what I'm going to do, because again I have to show it in a video mode. So I am proportionally making it smaller. However, uh, when you would be making it, you'll be making it as per size. So what I'm going to do is that I'm going to take as per, let's say, so for your workbook, practical book that is there, it is, the measurements that is given there is for size 12. I will work with size 8 so that we have a view of two different sizes as well, a proportion understanding of proportion of two different sizes as well. So I'm going to work with size 8, and I'm going to make it proportionally smaller. So I will start by making a rectangle. Now I'll tell you what is the measurement of this rectangle. And so in this method, you can also use the measurements that you have taken to make, let's say, a bodice for your friend as well. Now, the measurements that I'm going to take, the process that I'm going to make is, so as I said, that we would be working essentially on the basic set, which is the basic bodice, the basic skirt, and the basic sleeve. However, the basic bodice comes into two parts in this method, wherein first we work with a dartless bodice, the bodice which doesn't have any dart, like the ones we have in a lot of you know western tops, shirts, few kurtis, wherein there is no dart, absolutely no dart. And then from the dartless bodice, we are going to convert it into darted bodice, which is, for example, we have blouses, or those crop tops, or even for that matter, when you have kurtis which are fitted, those ones. Okay, so the length of this rectangle that I am taking would be the let me just make the rectangle and then I'll confirm the measurements. Give me one moment. So this rectangle is made by, the length of this rectangle is your bust girth divided by 2 plus another 1 inch. So for example, let's say for size 8, the bust girth, I'm writing everything here, the bust girth comes as 36 inches. So this measurement would become 36 divided by 2, which is
18 inch plus 1 inch, 19 inch. Is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The height of this rectangle is the measurement, which is the center back length, and I add 3 by 4 inch to it. So when you have the nape to waist, so the center back length is for size 8 is generally 16 and a half inch, and I would add another 3 by 4 inch to 16 and a half inch, and this would be the height of this rectangle. I divide this rectangle into two parts. In one part, I will make my front. In the other part, I will make the back. So I'm dividing it equally, exactly equally on for both the sides. Yes. Now I'll start with the back. For the back, I already have this extra 3 by 4 inch. This is so my garment is essentially, so see this 3 by 4 inch is my back neck depth, which means the back, if I look at the back, this is how the back looks, right? So if this is the HSP, the back neck is a little down from the HSP. तो ये वाला हमारा 3 by 4 inch है. ये HSP से कितना नीचे है? It's 3 by 4 inch. The first thing I'll do is I'll mark the 3 by 4 inch for me. This is 3 by 4 inch. For the front neck, I'm going to take the neck cut. So for size 8, the neck cut comes around 15 inch. I'm going to take the neck cut and divide it by 5. तो जो भी नेक कट है उसको बाई 5 करेंगे, तो जो भी आपका मेजरमेंट आएगा उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे. सो 15 डिवाइडेड बाई 5 इज अराउंड 3 इंच. तो हम यहाँ पे उसको मार्क करेंगे दोनों साइड में. दिस इज माय सेंटर फ्रंट लाइन, दिस इज द टॉप लाइन. दोनों साइड में मैंने 3 बाई इंच 3 इंच मार्क किया. नेक कट बाई 5. So this is neck cut by 5. This is neck cut by 5. And in the back also, this is neck cut by 5. I hope this is clear. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. अब हम ये वाला पॉइंट जो हमारे फ्रंट एंड, सो दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द बैक साइड. फ्रंट साइड वाले साइड में हम 1 3 by 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, और बैक वाले साइड में हम 1.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे. एंड दोनों को आधा आधा तक, अप्रोक्सीमेटली हाफ हाफ तक अंदर तक ले आएंगे. ठीक है, पैटर्न के अंदर तक ले आएंगे. नाउ हमारा शोल्डर लेंथ for size 8 is about 3 by 4 to 5 inch. Let's take it as 5 inch. ठीक है, जो भी हमारा ये मेजरमेंट है इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ताकि ये मेरा हाई शोल्डर पॉइंट से वो मेजरमेंट इस लाइन तक आ जाए. तो ये वाला लाइन मेरा 5 इंच का हो गया. अगेन यहाँ से इस लाइन तक आ जाए, तो ये वाला लाइन भी मेरा 5 इंच का हो गया. ठीक है. फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम दिस पार्ट हम एक मार्किंग करेंगे जो कि 8 इंच पे होगा. ये 8 इंच क्या है? 8 इंच हमारा आर्म होल का हाइट हो गया. तो हमारे ये मेरा वेस्ट लेवल था, ये नीचे मेरा वेस्ट लेवल था. वेस्ट लेवल से ये वाला हो गया मेरा आर्म होल लेवल. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. फ्रंट में एग्जैक्टली इससे 1 इंच ऊपर हम एक और लाइन बनाएंगे. सॉरी, 1 इंच नीचे हम एक और लाइन बनाएंगे. ये मैम सभी साइजेस में सेम रहेगा.
जो ये मेजरमेंट है ये मैं साइज 8 के हिसाब से बोल रही हूँ, बट आपको मेजरमेंट से ही लेने हैं। जैसे बस्ट गर्थ आपको लेना है, सेंटर बैक लेना है, नेक गर्थ लेना है, शोल्डर लेंथ लेना है, बट इसी प्रोसेस से करेंगे। ये जैसे हमने नेक गर्थ बाई 5 किया, तो सारे साइजेस के लिए हम नेक गर्थ बाई 5 करेंगे, नेक गर्थ मेजर करेंगे। अब किसी का नेक गर्थ 15 की जगह 14 आ सकता है, किसी का 16 आ सकता है, बट ये वाला जब हम नेक का ये मार्किंग करेंगे, उसके लिए हम जो भी आ रहा है उसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये वाला जैसे मैंने कहा 1/3/4 इस साइड में, और इधर 1.5 इंच, कोई भी साइज के लिए हो हम इतना ही लेंगे। अब ये शोल्डर लेंथ हमारा चेंज हो सकता है। मैंने यहाँ पे 5 इंच लिया, ये किसी और मेजरमेंट के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है, किसी और साइज के लिए कुछ और हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये वाला जो लाइन अभी हमने बनाया आर्म होल से 1 इंच नीचे, ये मेरा बन गया बस्ट लेवल। ठीक है, अब हम इस पे आर्म होल्स बनाएंगे। आर्म होल कैसे बनाएंगे? फ्रेंच कर्व लेंगे। अगेन मैं छोटे पैटर्न पे काम कर रही हूँ तो एग्जैक्ट ये फिट नहीं बैठेगा, बट हमें ऐसे बिठाना है। ठीक है, तो बैक के लिए हमें फ्रेंच कर्व को ऐसे बिठाना है, फ्रंट के लिए ऐसे बिठाना है। ठीक है, अब ये करने से पहले एक चीज हमारा इंपॉर्टेंट है करना, जो है हम कुछ 90 डिग्रीज बनाएंगे। तो हम इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री बनाएंगे, इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे, और फिर यहाँ पे एक बनाएंगे। तो जहां जहां बेसिकली मेरे कर्व्स बनने हैं, वो कर्व बनाने से पहले हम एक 90 डिग्रीज बना लेंगे, और बना के फिर इसको बेसिकली आपको ऐसे रखना है। आप जब पूरे फुल साइज में बनाओगे तो ये आपका एकदम आराम से आर्म होल पे बैठ जाएगा। जैसे बैठेगा ये मेरा ऐसे आ जाएगा आर्म होल का शेपिंग। बैक के लिए ऐसे आ जाएगा आर्म होल का शेपिंग। नेक के लिए हम इसको ऐसे बिठाएंगे, लाइक दिस, एंड ऐसे आ जाएगा मेरा फ्रंट नेक का शेपिंग। बैक के लिए हम इसको ऐसे बिठाएंगे, लाइक दिस, और ऐसे आ जाएगा मेरा बैक नेक का शेपिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। अब इससे ये हमारा क्या बना, ये हमारा डार्टलेस ब्लॉक बना। तो हमने याद है हम बात कर रहे थे कि पैटर्न हम जब भी बनाएंगे तो उस पर हम कुछ कुछ इंफॉर्मेशन डालेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन डालना था हमें? सबसे पहले तो ये करना था, हमें क्या पैटर्न है ये लिखना था। तो ये है डार्टलेस बॉडीज। कौन सा पैनल है? फ्रंट पैनल है। ये भी है डार्टलेस बॉडीज। ये है बैक पैनल। ये हो गया मेरा साइज 8 के लिए। आप जिस साइज के लिए बना रहे हो आप उनका साइज लिखिएगा। ये हो गया साइज 8 के लिए। कट कितना होगा? अब हमारा डिजाइन क्या है उस पर डिसाइड होगा हमारा कट कितना होगा। तो लेट्स से मेरा डिजाइन ऐसे शॉर्ट जैसा है, जहाँ पे फ्रंट मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मान लीजिए बटन्स है, और बैक मेरा एकदम सिंपल है, स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या है? बैक मेरा कंटिन्यूअस है। तो बैक मेरा एक ही बार कटेगा, पर कटेगा ये ऑन फोल्ड। इस लाइन पे फैब्रिक को फोल्ड करके फिर हम काटेंगे। फ्रंट कितनी बार कटेगा? फ्रंट कटेगा 2 बार। ठीक है, आपको ये इसके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे आरसी भुवनेश्वर से। आप इसको धीरे धीरे एक बार फिर से देख के, जब आप बना रहे हो तब आप फिर से देख के धीरे धीरे भी बना सकते हो। ठीक है, आगे के लिए भी यूज कर सकते हो। ये डार्टलेस बॉडीज क्लियर है क्या सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा काट लेती हूँ, and then we proceed with the dartless bodies. I'll just mute this for a while. The video is on.
तो ये बन गया मेरा फ्रंट एंड बैक। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके हम क्या बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे डार्टेड बॉडीज। और डार्टेड बॉडीज तक पहुंचने के लिए हम एक इंटरमीडिएट स्टेज यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेमी डार्टेड बॉडीज। ठीक है, सेमी डार्टेड बॉडीज के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे दोनों साइड सीम्स थे। ठीक है, ये हमारे दोनों साइड सीम्स है। ठीक है, ये बेस लेवल पे साइड सीम से हम थोड़ा अंदर जाएंगे। कितना अंदर जाएंगे, हम अंदर जाएंगे 1/3/8 इंच। तो ये हम अंदर गए, दोनों में ही इक्वली अंदर जाएंगे, जितना बैक में है उतना ही फ्रंट में है। ये मेजरमेंट हमारा है 1/3/8 इंच, 1 इंच एंड 3/8 इंच। ठीक है, और इन दोनों को, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे आर्म होल पॉइंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करने वाले हैं, हम बस्ट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने वाले हैं बॉडी में। सो ये हमारे मेजरमेंट्स थे। तो मान लीजिए ये हमारा आर्म होल लेवल हो गया, ये हमारा बस्ट लेवल हो गया बॉडी का। यहाँ पे कहीं पे बस्ट पॉइंट्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस बिटवीन दो बस्ट पॉइंट्स जो है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे बॉडी पे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और उसका हाफ लेंगे, और वो हाफ मेजरमेंट को हम यहाँ पे बस्ट लेवल पे मार्क कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हाफ डिस्टेंस बिटवीन बस्ट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये पॉइंट मार्क हो गया। तो इस पॉइंट को हम सीधा सीधा परपेंडिकुलरली नीचे तक ड्रॉप करेंगे। अब इसका डार्ट का इनटेक हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं डार्ट का इनटेक, तो अगेन ये वाला जैसे आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ, डिस्टेंस बिटवीन बस पॉइंट जो है साइज 8 के लिए इसका मेजरमेंट होता है अबाउट 7 इंचेस और 7.5 इंचेस एट टाइम्स। तो अगर लेट्स से 7.5 इंच है तो ये हाफ हो जाएगा 3/4 इंच। ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट के बारे में मैं बात कर रही थी, जो वो डार्ट का इंटेक कितना लेना है। कैसे डिसाइड करेंगे डार्ट का इंटेक कितना लेना है, हम पहले वेस्ट कट निकालेंगे कितना है। वेस्ट कट साइज 8 के लिए अबाउट 26 इंचेस रहता है, तो 36 बस्ट कट है ये वे हमारा डिस्टेंस। ठीक है, बस्ट कट प्लस हमने 1 इंच और ऐड भी कर दिया था, बस्ट कट प्लस बस्ट कट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंच किया था। तो अभी हमारा ये पूरा डिस्टेंस जो है ये हमारा 19 इंच का है ना, सॉरी 19 इंच नहीं है, 19 इंच टोटल था, 19 इंच का आधा है, तो 9.5 इंच है। करेक्ट, वेस्ट में हमें कितना चाहिए, वेस्ट में हमारा 26 होता है, ये 1/4 ऑफ द ब्लॉक है पूरा बॉडी का, ये बस इतना सा है, इतना सा है। ठीक है, पूरे बॉडी का, तो ये 1/4 है। तो वेस्ट डिवाइडेड बाई वेस्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, वेस्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है हमारा 6.5 इंच। ठीक है, हमें 9.5 इंच को लेके आना है 6.5 इंच तक। डिफरेंस कितना है, 3 इंच का डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 3 इंच का है। अब 3 इंच में से हमारा ये 1/3/8 ऑलरेडी कम हो चुका है, बचा कितना, बचा अनदर 1/5/8 इंच। ठीक है, ये समझ में आया, आई होप सबको ये समझ में आया। नहीं आया तो एक बार एक बार एक बार रिपीट करें। ठीक है, तो अभी मैं बोल रही थी ये 1/4 ऑफ द पैटर्न है। इस 1/4 ऑफ द पैटर्न का विड्थ हमारा है 9.5 इंच। हमने जो मेजरमेंट लिया था ये टोटल लिया था, जिसका विड्थ था 19 इंच, आधे का होगा 19 का आधा
9.5, ठीक है। 9.5 अगर ये है, हमें वेस्ट को पूरा फिट करने के लिए, एकदम फिट कर देने के लिए हमें वेस्ट बनाना पड़ेगा 26 इंच गर्थ का। 26 इंच का 1/4 कितना होता है? अगर 26 इंच का 1/4 होता है 6.5 इंच। अब 6.5 इंच और 9.5 इंच में डिफरेंस हो गया 3 इंच का। अब 3 इंच में से मैं बोल रही हूँ, ये तो ऑलरेडी मैंने शेप कर दिया, ये तो मैंने ऑलरेडी छोटा कर दिया, इसको मैं काट के निकाल दूंगी। तो 3 3 - 1 करना है हमें। बाकी जो बचेगा वो हमारा डार्ट में जाएगा। तो बाकी कितना बच रहा है? बाकी हमारा 1/5/8 बच रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. अब अब ये वाला जो मेजरमेंट है, इसी को हम डार्ट बना के इस लाइन के दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसे और ऐसे। ये पूरा हो गया मेरा 1/5/8 इंच। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया 1/5/8 इंच। ये लाइन पे 1 इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस डार्ट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। इस ये वाला साइड के शेप को मैं अभी फिलहाल के लिए फोल्ड करके रख दे रही हूँ, आप इसको काट भी सकते हैं। अब ये जो पैटर्न बना हमारा, ये आधे यहाँ पे शेप किया हुआ, ये हुआ हमारा सेमी डार्टेड ब्लॉक। अब यही डार्ट को हम बैक में भी ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? जितना हमारा ये डिस्टेंस है उतने में अगेन हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होगा। बेसिकली ऐसे अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूर है उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी दूर होगा, ठीक है। ये करके हम इसको अगेन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे टिल द टॉप। डार्ट का इनटेक भी उतना ही होगा जितना हमारा फ्रंट का डार्ट का इनटेक है। तो 1/5/8 अगेन, जहाँ पे ये लाइन खत्म हो रहा है ऊपर, वहां पे फिर 1 इंच हम नीचे जाएंगे, दूर जाएंगे उस एंड से और इस डार्ट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। बैक को भी अगर हम साइड से ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा बैक का सेमी डार्टेड ब्लॉक। ये फ्रंट और बैक का सेमी डार्टेड ब्लॉक्स हमारे बन गए। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डार्टेड ब्लॉक्स में। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। ऐसे रखेंगे फ्रंट को हम, वीडियो में पूरा आ रहा है, ऐसे हम फ्रंट को पूरा रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे इसको ट्रेस करना। और इस पे इसके बस्ट पॉइंट पे मैं एक पिन लगा लूंगी ट्रेस करने से पहले, क्योंकि इसको हम मूव करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? और ये ट्रेस करने से पहले एक और काम कर लेंगे, हम शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। ये रहा मेरा शोल्डर का सेंटर। इसको हम यहाँ से ट्रेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, शोल्डर के सेंटर से पूरा नेकलाइन को ट्रेस करेंगे, सेंटर फ्रंट को ट्रेस करेंगे, नीचे भी ट्रेस करेंगे पूरा वेस्ट लाइन। डार्ट को निकाल लेंगे, नीचे मार्क कर लेंगे डार्ट का इनटेक भी। साइड सीम को ट्रेस करेंगे, साइड सीम को ट्रेस करेंगे और आर्म होल के आधे को ट्रेस करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, बस आधे को ट्रेस करेंगे।
और अब हम इस पैटर्न को ऐसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे? ताकि ये वाला जो पॉइंट था मेरा, जहां तक मैंने इसको ट्रेस किया था, ये वाले पॉइंट से ये नया जो रोटेट करके आएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बचे हमारा 7 सेंटीमीटर। कोई भी साइज के लिए ये 7 सेंटीमीटर काम करेगा आपको, मोस्ट साइज के लिए। हाँ, ऑफकोर्स अगर कोई किसी का मेजरमेंट बहुत ज्यादा है, कोई बहुत हैवी है, तो उनका थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा किसी का नहीं होता। 7 सेंटीमीटर ज्यादातर लोग के लिए काम करता है। ये 7 सेंटीमीटर में शिफ्ट करके हम बाकी शोल्डर और आर्म होल को ट्रेस कर लेंगे। ये बन गया हमारा डार्टलेस का ट्रेस। तो हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। इस पॉइंट में मेरा आर्म होल है, ये आर्म होल लेवल बन गया, ये बस्ट लेवल बन गया। बस्ट लेवल से ये डार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। ये टेक्निक थोड़ा घुमाया हुआ दिख रहा है, बट अगर आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का और किसी भी साइज का बनाना है तो ये वाला टेक्निक से बहुत अच्छे से बनता है। मोस्ट हाई फैशन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। तो ये डार्ट मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करी, ये सेम डार्ट को मैंने यहाँ पे दोबारा से बना लिया। ऊपर वाले डार्ट के लिए अगेन ये 7 सेंटीमीटर का सेंटर निकालेंगे, 3.5 सेंटीमीटर होगा, और इसका सेंटर से फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। 1 इंच ऊपर जाएंगे और डार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये बन गया मेरा डार्टेड बॉडीज। फ्रंट साइज 8 कट 2। बैक को कैसे बनाएंगे? बैक का भी सिंपल प्रोसेस है, वैसे ही है जैसे बैक का फ्रंट का किया था हमने, थोड़ा सा बस डिफरेंस रहेगा। फ्रंट बैक के लिए हम इसको इस पॉइंट पे पिन डालेंगे, यहाँ पे मेरा बेस डार्ट खत्म हो रहा है। और अगेन इसका भी शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। शोल्डर के सेंटर पॉइंट से ट्रेस करना चालू करेंगे हम। नेक लाइन को करेंगे, सेंटर बैक को ट्रेस करेंगे, वेस्ट लाइन को ट्रेस करेंगे, डार्ट्स को निकाल लेंगे यहाँ पे। साइड सीम को ट्रेस करेंगे, और आधा आर्म होल को ट्रेस करेंगे। आधा आर्म होल ट्रेस करने के बाद हम अब इसको इस साइड रोटेट करेंगे। जब हम रोटेट करेंगे उसके लिए हमने 7 सेंटीमीटर रोटेट किया था, इसके लिए उतना नहीं करना है। इसके लिए हमें बस करना है ये वाले पॉइंट तक, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। कोई भी साइज के लिए ये चलेगा 1.5 सेंटीमीटर। और हम बाकी शोल्डर और आर्म होल को ट्रेस कर लेंगे। ये बन गया हमारा बैक। इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगेन बैक का बेस डार्ट तो सेम ही रहेगा। ऊपर वाले डार्ट का सेंटर निकाल के हम एक लाइन बनाएंगे। तो ये शोल्डर का लाइन है हमारा, इस लाइन से परपेंडिकुलर जाएगा एक लाइन, और इस लाइन का लेंथ होगा 3 इंचेस। और इस लाइन से हम डार्ट को फोल्ड कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा डार्टेड बॉडीज। बैक साइज 8 कट 1 एंड ऑन फोल्ड। अब एक चीज हमने मार्क नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, जो कि हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में भी, इससे पहले क्लासेस में भी, इसका ग्रेन लाइन। तो ग्रेन लाइन हमारा मार्क होगा ऐसे, इसमें भी होगा ऐसे, सेंटर फ्रंट से पैरेलल और सेंटर बैक से पैरेलल। ओके, नाउ ये हो गया हमारा
डार्टेड बॉर्डर्स। ये डार्टेड बॉर्डर्स को आप काट के निकाल सकते हो। जब आप काट के निकालोगे इन डार्ट्स को, अगर आप फोल्ड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे पीक्स बन जाएंगे। फोल्ड करके अगर आप काटोगे इन डार्ट्स को तो आपको दिखेगा ऐसे यहाँ पे पीक्स बन जाएंगे। ओके, ये क्लियर है या मैं नेक्स्ट वाले पे स्टार्ट करूं? यस मैम, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया हमारा बॉडीज। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बनाना, जो कि है हमारा स्लीव। स्लीव के लिए हमें बॉडीज से एक मेजरमेंट चाहिए। एक तो स्लीव के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट हमारा है, जो कि है स्लीव का लेंथ। और साइज है दिस इज अराउंड 21.5 इंच। आप अगेन अपने फ्रेंड का चेक कर सकते हो कितना आ रहा है। तो एक तो हम मेजर करेंगे स्लीव का लेंथ। दूसरा हम मेजर करेंगे, जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो है आर्म स्काई। क्या आर्म स्काई हमें कैसे पता लगेगा? ये बेसिकली आर्म होल का लेंथ है। तो हम ये बैक आर्म होल को मेजर करेंगे और फ्रंट आर्म होल को मेजर करेंगे। जो टोटल मेजरमेंट है बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल का, ये हो गया मेरा आर्म स्काई। तो ये कर्व में मेजरमेंट है, तो धीरे धीरे कर मेजर करना पड़ता है। तो अगर मुझे ये मेजर करना पड़े तो मैं ऐसे छोटा 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 मेजरमेंट लेके, क्योंकि कर्व में है तो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के थोड़ा थोड़ा करके मेजर करूंगी। तो जो भी मेजरमेंट आ रहा है फ्रंट एंड बैक का टोटल, बट यही है कि आप डार्टेड बॉडी से ये मेजरमेंट लीजिएगा, डार्टलेस से मत लीजिएगा। तो जो भी मेजरमेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि 20 आ रहा है, 20 इंचेस के अराउंड आ रहा है। अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं इसे। एक और मेजरमेंट हमें चाहिए जिसको हम बोलते हैं कैप हाइट। ये कैप हाइट क्या है? कैप हाइट बेसिकली ये है कि तो आप लोगों ने मोस्ट सबने आई थिंक स्लीव देखा होगा। स्लीव का पैटर्न हमारा कुछ ऐसा दिखता है ना? ये देखा ही होगा आप लोगों ने। यस मैम। यस मैम। तो ये वाला जो मेजरमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना हाइट है, इसको हम बोलते हैं कैप हाइट। ये हमारा बेसिकली आर्म स्काई का एक रेशियो है। कैसे रेशियो है? जैसे कैप हाइट जितना छोटा होता रहता है, स्लीव बॉडी से उतना दूर जाता रहता है। इसका मतलब क्या है? स्लीव मेरा ऐसा हो सकता है, जो कि हमारे ड्रेसेस में होते हैं। स्लीव हमारा ऐसा हो सकता है जैसे हमारे शर्ट्स में होते हैं, या स्लीव हमारा ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे टी शर्ट्स में होते हैं, है ना? तो ये बेसिकली क्या है कि अगर हम फ्लैट रख के गारमेंट को फ्लैट रखे तो स्लीव कैसे फॉल कर रहा है, यही है डिफरेंस तीनों में। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस आर्म होल पॉइंट से एक लाइन खींचूं, तो यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट इससे ज्यादा है और ये मेजरमेंट इससे ज्यादा है। तो जितना स्लीव दूर है, और यही है ये मेजरमेंट कैप हाइट, यही है ये तीन मेजरमेंट। तो कैप हाइट जितना बड़ा है स्लीव उतना पास आ रहा है, कैप हाइट जितना छोटा है स्लीव उतना दूर जा रहा है। ठीक है? यस। तो हम कैप हाइट इसके लिए कैसे बनाएंगे? अभी हम बेसिक स्लीव बना रहे हैं। बेसिक स्लीव के लिए कैप हाइट बेसिकली होता है ये आर्म स्काई का जो मेजरमेंट है, आर्म स्काई बाई 3। तो जो भी मेजरमेंट है उसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें कैप हाइट मिल जाता है। ठीक है, अब स्लीव बनाते हैं। स्लीव कैसे बनाएंगे? स्लीव के लिए पहला तो एक लाइन बना देंगे जो कि हमारा स्लीव लेंथ हो जाएगा। तो ये मान लीजिए मेरा स्लीव लेंथ हो गया टोटल, ये वाला लाइन। अब इस लाइन पे मैं ऊपर से आई विल मार्क माई कैप हाइट। ये मान लीजिए मेरा हो गया कैप हाइट। अब इस कैप हाइट वाले पॉइंट पे मैं एक 90 डिग्री ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा क्रॉस जैसा दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा मेरा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ बिट।
एक चीज आप ये देख सकते हैं, डार्टेड बॉर्डर्स काटने पे ऐसा दिखेगा कुछ। नेक्स्ट हम ये वाला पॉइंट से हम एक लाइन बनाएंगे। अब हमारा आर्म्स का ही मैं बोल रही हूँ अबाउट जैसे 20 इंच है, तो इसका हम आधा इस साइड लेंगे, आधा इस साइड लेंगे। एक साइड में हमारा स्लीव का बैक बनेगा, एक साइड में फ्रंट बनेगा। जैसे मान लीजिए ये अगर स्लीव है, ये साइड मान लीजिए मेरा फ्रंट बैक है, ये साइड मेरा फ्रंट है, तो इस साइड हम बैक बनाएंगे, इस साइड फ्रंट बनाएंगे। इसी को जो कि बैक आर्म होल प्लस फ्रंट आर्म होल था, इसी को हम 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो 10-10 इंच में डिवाइड हो गया। जो भी है आपका आर्म्स का है, उस हिसाब से आप इसको चेक कीजिएगा। तो थोड़ा सा और बड़ा बनाती हूँ। तो लेट्स से अगर ऐसे और ऐसे कुछ हो जाएगा ये वाला मेजरमेंट। इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे इस लाइन को। जो सबसे राइट साइड में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ये बाहर की तरफ बढ़ाएंगे हम 3/4 इंच। ये वाला भी हम बाहर की तरफ बढ़ाएंगे 3/16 इंच। ये वाला हम अंदर की तरफ ले आएंगे 1/2 इंच। ये फिर से हम बाहर की तरफ बढ़ाएंगे 5/8 इंच। ये फिर भी से बाहर की तरफ 3/16 इंच। और ये फाइनली अंदर की तरफ जो कि हमारा है 3/8 इंच। ठीक है, अब इसको हम कर्व बनाएंगे। ये हमारा स्लीव देखिए ऊपर वाला पार्ट कर्व्ड है। इसके लिए फ्रेंच कर्व को एक बार ऐसे बिठाना पड़ता है, एक बार ऐसे बिठाना पड़ता है, और कुछ शेप हमारा ऐसे आ जाएगा। कुछ ऐसा सा शेप आ जाएगा। इस साइड में भी एक बार ऐसे बिठाएंगे, एक बार ऐसे बिठाएंगे फ्रेंच कर्व को, और ये ऐसा शेप आ जाएगा। इसके हेम के लिए, ये लेंथ का हेम के लिए जो भी ये वाला मेजरमेंट था मेरा, इसी मेजरमेंट से हम 2 इंच छोटा कर देंगे। दोनों साइड से 1-1 इंच छोटा कर दे रहे बेसिकली। और स्लीव को ऐसे कंप्लीट कर देंगे। ये बन गया मेरा स्लीव। इसका ग्रेन लाइन कुछ ऐसा होगा। इसमें हम एक दो डालेंगे, 2 नॉचेस डालेंगे। एक नॉच डालेंगे ये कर्व जहाँ पे इसको टच कर रहा है, ताकि हम फ्रंट और बैक को अलग से बता पाए। तो एक हो गया ये सिंगल नॉच। इसमें हम डालेंगे डबल नॉच, तो हमें पता लगेगा कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। जो भी ये नॉचेस हमने डाला, वही मेजरमेंट्स को हम यहाँ से भी मार्क करेंगे, और हमारे बॉडिसेस में भी मार्क कर देंगे ऐसे। तो फ्रंट के लिए ऐसे सिंगल नॉच, बैक के लिए डबल नॉच, ये हम मार्क कर देंगे। इसमें लिखेंगे हम B6 स्लीव, फ्रंट एंड बैक साथ ही में हमारा, पैनल की जरूरत नहीं है, साइज 8 एंड कट 2, बिकॉज एक राइट एक लेफ्ट। तो 2 पैनल हमारे बन गए। तो हो गया कट 2। ओके, इज दिस क्लियर? Yes. Yes, Okay, ma'am. just give me 2 minutes, we'll start with the skirt.
नेक्स्ट हम बनाएंगे बेसिक स्कर्ट। अब बेसिक स्कर्ट हम जब बनाते हैं, बेसिक स्कर्ट जनरली हम बनाते हैं टिप नी लेंथ एंड इट इज अ स्ट्रेट स्कर्ट। हाउ डज द बेसिक स्कर्ट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे दो डार्ट्स होंगे हमारे, ये दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। सामने हम एक एक साइड में दो दो चार डार्ट भी डाल सकते हैं, नहीं तो हम एक एक दो डार्ट भी डाल सकते हैं। अभी हम सिंगल सिंगल डार्ट का इस मेथड से देखते हैं, फिर आगे वॉकथ्रू में जो मेथड है उससे हम डबल डार्ट वाला भी देख लेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट्स चाहिए? द फर्स्ट मेजरमेंट वी नीड इज द हिप गर्थ। तो अगेन फॉर साइज 8 लेके हम चलते हैं। साइज 8 की हिप गर्थ इज अबाउट 36 इंचेस। द वेस्ट गर्थ इज अबाउट 26 इंचेस। हम इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बॉडिस था उसका भी यहाँ पे हमने बस्ट 36 और वेस्ट 26 किया था, और ये हम साइड से 1/3/8 अंदर गए थे। तो ये 1/3/8 जो हम बॉर्डर्स में अंदर गए थे उतना ही हम स्कर्ट में भी अंदर जाएंगे, ताकि हम हमारा पूरा सेट एक एक ब्लॉक जैसा दिखे। तो वो साइड शेपिंग के लिए हम इसको 1/3/8 लेंगे। अगेन वो हमारा डार्ट का कैलकुलेशन हमने जैसे किया था उसको अगर हम फिर से करने की कोशिश करें तो हिप गर्थ का 1/4 हो जाता है हमारा। हिप गर्थ में हम अगेन ईज ऐड करेंगे 2 इंच का टोटल, तो ये अगेन 9.5 इंच का हो जाएगा हमारा 1/4 ऑफ हिप गर्थ। ये वेस्ट में हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, वेस्ट हमारा 6.5 हो जाएगा, डिफरेंस 3 इंच का। साइड स्क्रीन का शेपिंग हमारा -1/3/8, तो हमारा डार्ट इंटेक, वेस्ट का डार्ट इंटेक अगेन 1/5/8 का आ जाएगा। ये सेम कैलकुलेशन है जो हमने बॉडीज में किया था। अगर आपका हिप कर्ट कुछ और आ रहा है जो कि बस्ट से डिफरेंट है, तो फिर आपका ये कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। मान लीजिए कि मेरा इसका डिफरेंस आ जा रहा था मेरा 10 इंच का, तो अगर सॉरी 1/4 ऑफ द हिप, अगर मेरा 10 इंच आता है, हिप मान लीजिए 40 है, तो फिर 1/4 अगर 10 अगर आता है, तो फिर उस हिसाब से ये सारा चीजें चेंज होगा। ये 3.5 हो जाएगा, इससे माइनस करके जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा वो सब हमें ऐड करना पड़ेगा। अगेन स्कर्ट के पैटर्न के लिए हम अगेन स्टार्ट करेंगे जैसे हमने बॉर्डर स्टार्ट किया था, लाइक अ रेक्टेंगल। This is the width of the rectangle, and we will take this as the height. So ये रेक्टेंगल का विड्थ हमारा हो जाएगा हिप गर्थ डिवाइडेड बाई 2 इंच प्लस 1 इंच का ईज। अब जो भी इसका लेंथ है इसका हम हाफ लेंगे, एंड सॉरी द हाइट ऑफ इट इज द नी हाइट, नी लेंथ। साइज 8 के लिए द नी लेंथ, वेस्ट टू नी लेंथ इज 22 इंचेस। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये इसका लेंथ लिए है 22 इंचेस। इसके लिए हम इसको फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। बेस से हम 7 इंचेस नीचे जाएंगे। साइज 8 के लिए हिप लेवल इज 7 इंचेस डाउन, तो हम 7 इंचेस नीचे जाएंगे और नीचे होगा पॉसिबिलिटी हियर इट विल कम। और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे फ्रंट टू बैक अक्रॉस द एंटायर लेंथ। अब हम बॉर्डर्स का पैटर्न लेंगे। बॉर्डर्स का हमारा जो पैटर्न था, डार्टेड भी ले सकते हैं, डार्टलेस भी ले सकते हैं, जो भी पैटर्न था इसको हम ऐसे बिठाएंगे। और डार्टलेग का जो पहला पहला लाइन था, जो ये वाला लाइन था, इसको हम मार्क कर देंगे।
इसी पे मेरा आएगा डार्ट, इसके आगे आएगा डार्ट, तो ताकि डार्ट जब हमारा फोल्ड करे तो बॉडीज का डार्ट और स्कर्ट का डार्ट एक ही लाइन पे आए, और वो जब अगर मुझे इन दोनों को जोड़ के एक ड्रेस बनाना हो तो वो एक ब्लॉक जैसा दिखे। तो इससे हम इस पॉइंट को इसलिए यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिए है, क्योंकि सेम है तो मैं इसी पॉइंट को मार्क कर रही हूँ, और इस सेंटर को पकड़ के मैं बेस तक खींचूंगी। फ्रंट के डार्ट का लेंथ होता है फॉर स्कर्ट 3.5 इंच। आप किसी भी साइज के लिए बनाइए, दिस शुड वर्क 3.5 इंच फॉर फ्रंट। डार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हम 3/8 अंदर जाएंगे, 3/8 इंच, इधर भी 1/3 अंदर जाएंगे। बैक के लिए भी हम वही काम करेंगे जैसे हमने फ्रंट के लिए किया, और बैक का बॉडी लेके हम स्टार्ट को मार्क कर देंगे। स्टार्ट का फर्स्ट लेग और डार्ट का इंटेक जितना भी होगा हम उसको मार्क कर देंगे। सेंटर लाइन को ज्वाइन कर देंगे। बैक का डार्ट का लेंथ वुड बी 5.5 इंच, तो ये 3 इंच पर 1.5 इंच हो गया, ये 5.5 इंच हो गया। डार्ट को कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा शेपिंग देंगे। शेपिंग कैसे देंगे, पहले तो साइड सीम को शेप करेंगे, 2 इंच ऊपर एक पॉइंट को मार्क कीजिएगा और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे। कितना ऊपर ले आएंगे, 1/4 इंच तक ये पॉइंट को ऊपर ले आएंगे। और हिप कर्व, आपके फ्रेंच कर्व को ऐसे रख के, आप हिप कर्व भी यूज कर सकते हो, वैसे ऐसे रख के दोनों साइड में हम तो ऐसे एक कर्विंग कर देंगे। बोथ साइड हम ऐसे इसको कर्व कर देंगे, और फिर हम इसको एक कंप्लीट स्मूथ करके, जैसे आप इसको शेप करोगे तो आपको भी ये दिखेगा। और सेंटर फ्रंट को हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ये हम नीचे क्यों कर रहे हैं, आप कभी भी कोई स्कर्ट को देखिएगा, जब आप इसको फ्लैट ले करते हो स्कर्ट का फ्रंट थोड़ा नीचे रहता है, बैक थोड़ा ऊपर रहता है। तो ये इसलिए रहता है कि फ्रंट में हमारा टमी रहता है, टमी के कर्व को शेप में लेने के लिए हम ये शेपिंग थोड़ा सा रखते हैं। इधर हम नॉर्मल वेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे हम इस डार्ट को फोल्ड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक पीक आ जाएगा आपका, और फिर ये ऐसे दिखेगा। तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा डार्ट का पैटर्न, स्कर्ट का पैटर्न। स्कर्ट का पैटर्न अगर हम काट के निकाले तो कुछ ऐसा दिखेगा। हम ये सिंगल डार्ट को डबल डार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली इस डार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि कितना है यहाँ पे, उसको हम आधा लिए और आधा 1 इंच दूर बाकी मार्क किए, तो वैसे हमारा ऐसे डबल डार्ट भी हो सकता है। डार्ट में हालांकि वेस्ट में सॉरी स्कर्ट में हालांकि बाकी चीजें हमें लिखनी है। दिस इज द बेसिक स्कर्ट, फ्रंट, साइज 8। स्कर्ट जनरली कंटिन्यूअस होता है तो ये हमारा कट वन होगा एंड ऑन फोल्ड होगा। बेसिक स्कर्ट, बैक, साइज 8, कट वन एंड ऑन फोल्ड होगा। जिपर जनरली स्कर्ट में साइड में आता है, हमारे साइड सीम में जिपर आता है। एंड हम ग्रेन लाइंस भी मार्क कर लेंगे बोथ फ्रंट एंड बैक में विथ एरोज ऑन बोथ द हेड। I hope this is clear. Is there any queries you can ask me? Yes, ma'am. Okay, then just give me a moment. I'll connect back with my laptop device so that I can show you your workbook, and I start the screen share.
I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Yes. I am audible, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Hello. Yes, ma'am. There is some problem with my audio. Just give me one moment. Huh? Can somebody confirm me whether you're able to hear me now? Yes, ma'am. I can't hear you. I don't know why. Just let me join back. Yeah. Can you hear me now? Yes, Hello. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Let me just start the screen share once more. Okay. I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Yeah. So here, this is your practical workbook. I think everybody has it, and you can see it starts essentially with the body measurements, which we are already talking about, and drafting of the basic, the basic blocks. Let me just take you through this. This is the measurement chart we have already discussed about. This is the first. I got an email. I think one of you was asking that what are the things that we need to cover in our practical workbook. So if you look at your practical workbook, your exercise 1 and exercise 2 is essentially the same exercise wherein you're taking two of your friends to do it. So for now, you can just do it with one of your friend, and then as you practice more, so this practical workbook is more of your practice workbook wherein you can practice more and more. So for now, you are making it with either just the exercise 1 will be okay. Now, coming down, if you see this is a detailed. This exercise 3, exercise 4. These are essentially where they are segregating between the kurta measurements and the salwar measurements or the pant measurements. But if you look at your measurement charts, essentially the measurements that you would be taking will cover uh, exercise 3 and 4 as well. So एक्सरसाइज 1 and 2 वुड बी अ मोर होलिस्टिक मेजरमेंट चार्ट जिससे आप कुछ भी बना सकते हो. एक्सरसाइज 3 and 4 हाफ हाफ में डिवाइड हो गया है. Coming down, this is the drafting of the bodies that they are talking about. These are the terminologies that we have already spoken about when we were doing the theory, the basic pattern, the working pattern, the production pattern. All these things we have something that we have already spoken about. Now, this is the measurement chart that they have already provided for your size 12 woman. What I gave was for size 8. This is for size 12. You can take your friend's measurement and start doing working on it, or you can simply take these measurements for your draft as well. Now when you take these measurements, for example, remember whenever I was giving you the demonstration, जब भी मैं आपको दिखा रही थी, मैं कहीं पे 3/4 ऐड करी लेंथ में,
कि नेट ड्रॉप के लिए हमें 3/4 ऐड करना है या ईज के लिए हमें 1 इंच और ऐड करना है। सो बेसिकली उससे तो मेन मेजरमेंट चार्ट से एक डिराइव मेजरमेंट चार्ट बनाया है इन्होंने, एंड फिर उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। सो बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया ये बॉडीज भी कुछ ऐसा ही दिखता है। बनने पे दोनों बॉडीज दिखेगा सेम ही, बट इसके स्टेप्स कुछ अलग है। तो इसको मैं और दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि ये कैसे किए हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे ये सारा नंबरिंग दिया हुआ है और एक से दूसरा स्टेप आप उसको उस हिसाब से जा सकते हो। ये सारे पॉइंटर्स आपको ऑलरेडी पता है कि नेप किसको बोलते हैं, वेस्ट किसको बोलते हैं, HSP और हाई शोल्डर पॉइंट या एपेक्स, ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जैसे ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं आप उस हिसाब से बना सकते हो। तो अभी नेक्स्ट असाइनमेंट क्या हो गया, पहला तो आपका मेजरमेंट चार्ट हो गया। सेकंड असाइनमेंट इज अ darted bodice block. Now this darted bodice block is something which you can follow this method or the method that I showed. I am okay with either one. आपको एक darted bodice block बनाना है, बट आपको actual measurements में बनाना है। तो when I say actual measurements, what do I mean? You can take the measurements that I gave you for size 8 or the measurements that the workbook is giving you for size 12 or the measurements that you would take from your friend. ये सारे measurements आपको लेके कोई भी एक measurement को उठा के आप ये एक bodice आप बनाओ और उसका आप एक अच्छे से फोटो लोगे। फोटो जो लोगे वो समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए अच्छे से, क्लियर स्कैनिंग टाइप फोटो लीजिएगा ताकि एंड उसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा के लीजिएगा ताकि अच्छे से दिख पाए। इट इज़ बेटर दैट यू यूज़ अ वाइट शीट, बिकॉज वाइट शीट लेंगे तो मुझे अच्छे से दिखेगा। एंड फाइनली अगेन देखिए यहाँ पे एक स्लीव का ड्राफ्टिंग का टेक्निक है। स्लीव आपको मैंने जो दिखाया वो बेसिक स्लीव दिखाया। यहाँ पे बेसिक स्लीव में उन्होंने एक और एडिशन किया है विच इज़ द dart in a sleeve. You want to add this dart and make the draft like this. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बॉडीज के बारे में कहा वैसे ही आप स्लीव को लेके भी कर सकते हो। स्कर्ट के लिए इन्होंने जैसे मैंने आपको कहा सिंगल डार्ट से हम डबल डार्ट भी बना सकते हैं। तो आपके वर्कबुक में दे हैव यूज्ड सिंगल डार्ट फॉर फ्रंट एंड डबल डार्ट फॉर बैक। अगेन यू कैन मेक with this method or the method I showed. Either way आपको 3 पैटर्न्स बनाने हैं, बॉडीज, डार्टेड बॉडीज, स्लीव एंड स्कर्ट। ये 3 आप बनाओगे प्रेफरेबली वाइट शीट में, बिकॉज फोटो खींचने पे इट विल बी विजिबल बेटर एंड you will take a good high contrast photo and you will submit it. ठीक है, how to submit I'll come to that point. So again this is the method and as we would move on your workbook, these are basic understanding for you to के क्या questions हो सकते हैं, so like that. As we move ahead, दिस इज बेसिकली कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ करने हैं ये भी मैंने अभी आपको दिखाया कि ये सब तो हमने ऑलरेडी बात किया था कि क्या क्या टूल्स मटेरियल यूज़ होता है। बट हाउ एवर वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर इज़ दैट कि इंफॉर्मेशंस क्या क्या होने चाहिए। सो देखिए यही है इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये इंफॉर्मेशंस आपका सारा पैटर्न में होना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज एसेंशियली टॉकिंग अबाउट दैट। सो एवरी चैप्टर, so this is for the sleeve, the information that should be there. This is for skirt, again the information जो होना चाहिए। Now इसके बाद we move on to the part wherein we are essentially talking about okay, so this is talking about different techniques. Okay, now there is one part in your course which I am skipping. The reason being आप सबके पास you have already machines and I am understanding that I am not asking you to do this part. I'll tell you what part this is. This part is wherein we start, so when we teach and students use machines for the very first time, we ask them to do this. So these are basically boxes जिसमें parallel line draw किया हुआ है. And we ask the students
try to stitch on the lines. But because you all of you have machines, and I'm understanding that you are already, you are already somebody who have already handled machines for so long, so this part of the exercise is not something that I want you to submit. But however, if any of you who is, जिनके लिए एकदम आपके पास मशीन तो है बट आपने कभी यूज़ नहीं किया, आपके पेरेंट्स की मम्मी की मशीन है या नानी की मशीन है जो आपको मिला है बट अभी आपने कभी यूज़ नहीं किया है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। हाउएवर मैं ये मांग नहीं रही हूँ आपसे एज असाइनमेंट, क्योंकि अ लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी समबडी सेड कि मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं बहुत कुछ बनाता हूँ, या बहुत लोगों को इंटरेस्ट है कुछ कुछ बनाने में। तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें तो इस वुड बी वेरी इजी फॉर यू, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू दिस। सो बट लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू कि इसमें क्या क्या है। इसमें डिफरेंट लाइन्स है, जैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, या ऐसे आप एक जिक्सॉ पजल जैसे आगे पीछे ऐसे करके आप स्टिच करके देख सकते हो। आप ऐसे कॉर्नर्स को भी स्टिच करके देख सकते हो कि कैसे कॉर्नर टू कॉर्नर स्टिच हो पाए, या कर्व में विद अ पॉइंट at the end, all these curves. So these are basic exercise which are there. Now, however, now let me just come to the part which is more important. Is the part which I want you as the third part of the assignment, which is the seam construction. Okay, I'm just stopping the screen share. I'll share another file which would be more relevant here. I hope this is visible. Yes, ma'am. So this is basically a very nice. So what you see here is a seam diagram. ठीक है, दिस इज, उस दिन मैंने आपको डिफरेंट टाइप के सीम्स दिखाए, ठीक है, कैसे फैब्रिक में कैसे दिखते हैं, और कंप्लीट करने के बाद वो सीम कैसा दिखता है। सो दोज आर द थिंग्स दैट आई शोड यू, बट इन डिटेल हाउ डज दिस लुक। So there are 6 seams here. I want you to make 5 of this, not all. I just want you to make 5 of this, and any 5 out of this 6, you can make any 5. This is not a part of your, this diagram is not there in your workbook, so you can take screenshots or photos from the screen which will help you to make the diagram. Now, how will you make this? Before I start with the detailing and explaining how the seam diagrams of each of these type of seams work, let me just explain you how to make this. You will take two for each of the seam. For example, हम plain seam बनाएंगे, आप 2 फैब्रिक के ब्लॉक्स लेंगे। Now these blocks will be the length of the block जिस पे आप जिस लेंथ पे आप स्टिच करोगे टू in a line, parallel to the grain line or the selvage of the fabric. This length would be 5 inches. The width would be around, again you can take as 5 inches. फैब्रिक को लेके अच्छे से स्क्वायर करके ब्लॉक करके निकालोगे। यू रिमेंबर व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट stitching, I was talking essentially about how blocks are cut out. So the first thing you will do, that you will cut out the block properly and you will press it. When I say press it, do not iron it, do not stretch it, do not आयरन करने पे हम प्रेसिंग और आयरनिंग का डिफरेंस बात कर रहे थे। आयरनिंग करने पे आपका फैब्रिक स्ट्रेच हो जाएगा, तो आयरन मत कीजिए, प्रेस कीजिए, हॉट आयरन से प्रेस कीजिए। कॉटन फैब्रिक लीजिएगा, मसलिन ले सकते हैं, पॉपलिन ले सकते हैं, कुछ भी कॉटन फैब्रिक लीजिएगा, एंड उस पर यू विल स्टिच विद अ कॉन्ट्रास्ट थ्रेड। तो अगर जैसे मैं उस दिन आपको जो दिखा रही थी, तो उस पर पर्पल फैब्रिक स्टिच विद एन येलो थ्रेड, तो आपका सीम बहुत क्लियरली, क्योंकि इसके भी आपको फोटो खींच के सबमिट करने हैं, राइट, तो आपको सीम्स बहुत क्लियरली विजिबल होंगे आप जब फोटो खींचेंगे। सो इफ यू आर यूजिंग अ ब्लैक फैब्रिक, यूज अ वाइट थ्रेड, अ मरून फैब्रिक, यूज अ वाइट थ्रेड, और अ वाइट फैब्रिक, यूज अ ब्लैक थ्रेड।
इधर वे जो भी आप एक कॉन्ट्रास्ट थ्रेड यूज़ कीजिएगा। अब कैसे बनाना है देखते हैं। प्लेन फैब्रिक एक एक करके बताते हैं। प्लेन सीम में क्या कर रहे हैं हम, ये 2 पैनल्स है। आई एम स्विचिंग, माय वीडियो इज ऑफ पॉसिबली। I'm switching on the video and along with the images, please follow what I'm trying to say. So I will use this paper as a fabric. So I'm just taking 2 panels of this paper, uh, taking it as 2 sides of 2 pieces of fabric. So ये फैब्रिक के 2 पीसेस बन गए। इसको हम क्या करेंगे, इस पे मैं मार्क कर लेती हूँ पहले कि कौन सा राइट साइड है और कौन सा रॉन्ग साइड है। तो बेसिकली जो टिक लगा हुआ होगा वो राइट साइड होगा, जो क्रॉस लगा होगा वो रॉन्ग साइड होगा। ठीक है। प्लेन सीम के लिए क्या आप बोल रहे हैं, हम प्लेन सीम के लिए बोल रहे हैं फैब्रिक के दोनों राइट साइड्स को एक साथ रखे, फेस टू फेस रख के हम ऐसे रखेंगे ताकि बाहर से हमें बस रॉन्ग साइड दिखे, और एक स्टिच एकदम इस लाइन पे डाल देंगे। सो इफ आई पुट अ स्टिच हियर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज, एंड पे हम बैक स्टिचिंग करेंगे, दोनों साइड पे बैक टैक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा, और ये हमारा सील हो जाएगा। सो व्हेन वी ओपन इट अप इट विल कम एज अ प्लेन सीम। ठीक है। द प्लेन सीम कम्स विद अ टॉप स्टिच इन द सेकेंड, जहाँ पे हम ये स्टिच करने के बाद इसको एक साइड पे फोल्ड करेंगे और आयन कर देंगे, ऐसे प्रेस करके उसको आयन कर देंगे, और उसके बाद उस पे एक और स्टिच डाल देंगे विच इज द top stitch. Now understand in the diagram how is this diagram made. So ये वाला जो दोनों चीजें हैं ये आपके फैब्रिक की शीट से ये लाइन जो जा रहा है ये स्टिच लाइन जा रहा है। सो इसके लिए ये है स्टिच लाइन, इसको ओपन करेंगे तो ये स्टिच लाइन ऐसे दिखेगा, और ये टॉप स्टिच का लाइन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रंट सीम। फ्रंट सीम में लिए क्या कर रहे हैं हम, इसमें राइट साइड को फेस टू फेस किए थे, इसमें हम रॉन्ग साइड को लेंगे। रॉन्ग साइड को हम फेस टू फेस पहले लगाएंगे, और तो बाहर से हमें राइट साइड दिखेगा। एकदम साइड पे, एकदम कॉर्नर पे हम पहले 1/2 सेंटीमीटर पे एक स्टिच करेंगे, उसको आधा सेंटीमीटर स्टिच करके हम एक साइड पे ऐसे फोल्ड कर देंगे। स्टिच करने के बाद एक साइड में ऐसे फोल्ड कर देंगे और फैब्रिक घुमा के फिर से खोलेंगे, और अब इस बार हमारा राइट साइड से अंदर रहेंगे और लेफ्ट साइड बाहर रहेगा, और हम उस पर फिर से एक और स्टिच डालेंगे। जब ये करेंगे तो हमारा खुलने के बाद दिस बिकम्स अ फ्रंट सीम। वेल्ट सीम में क्या हो रहा है, वेल्ट सीम में हम प्लेन सीम करेंगे, सीधा सीधा अगेन ऐसे रख के प्लेन सीम करेंगे। एक वाले पैनल को हम थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको फ्लिप करके उस पर एक और स्टिच मार देंगे, तो बन जाएगा हमारा बेल्ट सीम। फ्लैटन फेल के लिए क्या है, अगेन हम रॉन्ग साइड को फेस टू फेस स्टिच करेंगे, पहले ऐसे पिन करेंगे, फेस टू फेस सिम करेंगे, एक को हम उल्टा करेंगे और वापस ऐसे ले आएंगे, और एक इधर स्टिच करेंगे, एक इधर स्टिच करेंगे, तो इस साइड पे हमारा फ्लैटन फेल बन जाएगा। फ्लैटन फेल हमारा एसेंशियली बनता है इन शॉर्ट्स और जीन्स की इंसीम। एंड फाइनली इट्स अ पाइप सीम। पाइप में एक पाइपिंग हम डालेंगे, एक एक्स्ट्रा पाइपिंग डालेंगे, और तो बेसिकली हमारा प्लेन सीम जैसा ही है, बट बीच में एक और पाइपिंग का लेयर है, एक और छोटा सा लेयर है, और ये हमारा ओपन करने पे पाइप सीम बन जाएगा। आपने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए डायग्राम्स के और डिस्क्रिप्शंस के। यस मैम। ठीक है। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, इसमें से आप कोई भी 5 सीम्स को बनाएंगे,
और ये 5 सीम्स को बना के अच्छे से आयन करके बनाइएगा। बना के इसके इमेजेस लेके आप एक वर्ड फाइल बनाएंगे। यू विल मेक वन वर्ड फाइल and this one word file will have all your all the details that is there. So it will also have it will have the first part of the word file would be the measurement chart. उसको आप उस word file में पहले पेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट उस पर आप इमेजेस आपके जो पैटर्न्स है उसकी इमेजेस को आप पेस्ट करेंगे। तो पहले आपका बॉडिस डार्टेड बॉडिस आएगा, फिर आपका स्लीव आएगा, फिर आपका स्कर्ट आएगा, फॉलोड बाय योर दिस सीम टाइप्स। तो डिफरेंट सीम टाइप्स होंगे। जो भी सीम आप बनाएंगे उसमें आप क्लियरली लिखेंगे, उसके नीचे वो इमेज के नीचे क्लियरली आप लिखेंगे कि वह कौन सा सीम टाइप है, फ्लैट एंड फेल है या फ्रंट सीम है, प्लेन सीम है, जो भी सीम है आपको लिखेंगे नीचे। ठीक है, और ये सिंगल एक वर्ड फाइल बनेगा हर एक स्टूडेंट का and you will submit it in my email id. Last day I had already given you my email id. I'm writing it once more so that you have it for your reference. So I've given you the my email id. Now our next class, today is 3rd. Our next class will be on 18th of October on a Friday from 2 to 4 p.m. Now I would request you to submit this assignment on or before 10 a.m. of 18. So that the submission date is also given there. So आप 10 बजे से पहले you will submit it. In the class, however, I will evaluate the submissions in the class when we connect. There will also be a part of your evaluation which is based on question answer of it. So you can go through your workbooks or your the curriculum or whatever we have discussed in the class. You can go through any of those things, and we will I will ask you questions on I hope we will everybody will be able to answer it, because again we have discussed everything, and most of you have already has a background and has worked on these things. तो बेसिक कुछ एक वाइवा वॉइस होगा, and you will be evaluated on the basis of that. Is that okay? Yes, ma'am. It's okay. ठीक है. Alka, I hope I have answered your query regarding the workbook and the assignments. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes. Yes. Okay. Then if anybody else has any other queries, I'm happy to Ma'am, answer. ma'am, I have. हाँ निकिता Ma'am, बताइए. when we have to submit these practicals? It is please open the chat message. See, look at the chat box. It's 10 a.m. of 18th October. Okay. Thank you, ma'am. On or before 10 a.m. of 18th October. Zainab, do you want to say something? यस मैम। मैम Yes. एक्चुअली मैंने फर्स्ट क्लास में ली थी, मिस हो गई थी, तो फर्स्ट असाइनमेंट क्या है? फर्स्ट असाइनमेंट है आपको एक मेजरमेंट चार्ट बनाना है। ठीक है, आप कोई भी एक आप से अगेन आप अपने वर्कबुक पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि डिफरेंट मेजरमेंट्स दिए हुए हैं आपके, जैसे बस्ट गर्थ है, हिप गर्थ है, वो सब कुछ दिया हुआ है। वो एक्सरसाइज 1 को देखिएगा। आप किसी भी एक फ्रेंड को आपकी जो भी फ्रेंड है फीमेल, you will take measurements of her and you will fill up that chart. ओके मैम। Okay. ओके मैम, Any थैंक other यू। query? Thank you. Any other query? Okay. In that case, we can finish the session. We can meet again. We will meet again on 18th, and then we take this forward. Okay. And all the best for the rest of your courses, rest of the classes.
you possibly have it between you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. you, ma'am. Excuse me guys. हेलो. Thank you. अरे यार, ये जैसे मैम ने बताया ना, इसको बना के इसको फोटो क्लिक करके फिर ईमेल पे सेंड करना है ना. हाँ जी उसका मैम, डॉक वीडियो बना कॉल के पे भेजना है ना मैम को, पीडीएफ पूरे कैन असाइनमेंट्स समवन का। प्लीज एक्सप्लेन मी यार. ये स्पीचेस बना के मैम वीडियो कॉल पे चेक करेंगे और ये फोटो खींच के सबमिट करना है. ऑन वीडियो कॉल और ऑन ईमेल? ईमेल पे भी और और वीडियो कॉल पे email. भी चेक करेंगे. ओके, थैंक यू.